Hello friends, welcome to Raj Malhotra's IAS Academy. I am Megham Jyot and today I am going to take up the session for the IR Weekly Current Affairs. So let's begin the discussion. We shall be taking up 4 topics for today. The first one we are going to discuss is Wassenaar Arrangement. The second one here is India-Israel relationship. The third one for today shall be on the United Nations Security Council, that is UNSC. And the fourth and the final one shall be on the G20 grouping. This has been very much in news, so let's begin the discussion. First one is Wassenaar Arrangement. है क्या ये? See, this Wassenaar Arrangement is a multilateral export control regime. What does this mean? Multilateral? It means that multiple countries are sitting together and this is a export control, that is the multiple countries sitting together, they are trying to control the exports. Exports in which sector? It is particularly defense. Defense technologies में कुछ export को control करने की बात हो रही है and for that this is a regime. What does this word regime means? It means that certain countries are sitting together and they are making certain rules or regulations or they are making certain norms or maybe certain protocols. In this case, these protocols or norms, they relate to the defense sector and particularly governing the export of the defense sector. So, ये export control group है which is focused on the defense sector, right? There are many such export control groups. The 4 most important ones are the Nuclear Supplier Group. It was formed in the year 1974-75, right? Then we have the Australia Group. It was formed 10 years later in the year 1985. उसके 2 साल बाद we got this Missile Technology Control Regime, that is we abbreviated it as MTCR, right? And then we got the Wassenaar Arrangement which was formed in the year 1996. This shall be our topic of discussion for today, right? One thing you should know is India is not a member of the Nuclear Supplier Group. बाकी 3 की हमारे पास membership है and we very much want to be the member of the Nuclear Supplier Group also, right? News क्या है? 26th annual plenary हुई थी, that is annual meet हुई थी Wassenaar Arrangement की in the city of Vienna, right? And यहाँ पे क्या हुआ है? आयरलैंड ने चेयरमैनशिप वासेनार अरेंजमेंट की हैंड ओवर की है टू इंडिया, दैट इज इंडिया हैज रिसीव्ड द चेयरमैनशिप ऑफ वासेनार अरेंजमेंट एंड इंडिया शैल बी ऑफिशियली अज्यूमिंग द चेयरमैनशिप फ्रॉम 1st of January, this coming 1st of January, that is year 2023, right? And India will be holding the chairmanship for 1 year, that is till next December. We will be holding the chairmanship of this Wassenaar Arrangement. So है क्या ये Wassenaar Arrangement? आर्म्स के एक्सपोर्ट को कंट्रोल करने के लिए एक ग्रुप बनाया गया है. This is what is a Wassenaar Arrangement. This is very much similar to Nuclear Supplier Group, that is NSG and MTCR as I just explained in the slide number 1, right? कब बना था? 1996 में. एंड इससे पहले क्या था? एक कोल्ड वॉर एरा का कमेटी थी विच वॉज कोऑर्डिनेटिंग कमेटी फॉर मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल्स, राइट? दिस इज एब्रीवेटेड एज COCOM, राइट? कोऑर्डिनेटिंग कमेटी फॉर मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल्स, दिस वॉज द नेम ऑफ द कमेटी. इसको रिप्लेस करके वासेनार अरेंजमेंट बनाया गया एंड वासेनार अरेंजमेंट में 42 मेंबर्स हैं और फोकस क्या है इसका? इट इज focusing on the conventional weapons. What are these conventional weapons? See, conventional weapons non-nuclear weapons होते हैं, right? So these are not based on the nuclear energy, rather they are based on the chemical energy. These weapons are based on the chemical energy. क्या क्या examples हो सकते हैं? What all is included in the conventional weapons? It can be bombs. It can also be the missiles, right?
then we can have certain arms, certain ammunitions, all these are included under the conventional weapons, right? और क्या included है इसमें? Dual use goods. What are these dual use? जिसके दोहरे use हों, that is double use, right? कौन से? These are peaceful और military. या तो इनके peaceful use हो सकते हैं या military uses भी हो सकते हैं. As I just told that this is based on chemical energy. So chemical energy का peaceful use भी हो सकता है. That is energy generation के लिए. And secondly, इसका और क्या use हो सकता है? To make certain bombs or maybe certain arms, certain ammunition. These can be the military uses also, right? So chemical energy के दो uses हो सकते हैं, peaceful भी और military भी. So जो ऐसे dual use goods है उनके export को भी ये check करता है along with the conventional weapons. Secretariat कहाँ है इसका? It is in Vienna, which is in Austria, right? यहाँ पे वासेनार अरेंजमेंट का एक सेक्रेटरिएट बनाया गया है. एंड व्हाट आर द फॉर्मेलिटीज? सी, जितनी भी पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं दे आर सपोज टू सबमिट अ रिपोर्ट. 6 महीने बाद उन्होंने, दैट इज 6 मंथली बेसिस पे उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट करनी होती है कि कितने उन्होंने आर्म्स ट्रांसफ़र किए टू सर्टेन कंट्रीज एंड हाउ मेनी ऑफ देम हैव बीन डिनाइड टू सर्टेन अदर कंट्रीज, राइट? कब बना था ये? 1996 में. इंडिया कब मेंबर बना? इन 2017 में, राइट? इंडिया became its 42nd member in the year 2017 and now we have assumed the chairmanship. Objectives क्या हैं इसके? Exchange of the information amongst the member countries. Second is maintenance and updation of the detailed list of the chemicals, technologies या processes जितने भी दूसरी country को उन्होंने supply किए हैं, each country shall be making a list of it, right? And then controlling the movement of the technology, material and components to the countries or the entities which undermine the international security and stability. That is, जो countries इसका misuse कर सकती हैं technology का, उनको डिनाई करना. उनको अगर कुछ सप्लाई हो रहा है देन इट शैल बी अंडर द चेक, राइट? प्लीनरी क्या होती है? एज वी डिस्कस्ड 26th प्लीनरी, इट वाज अ मीटिंग. क्या है ये? किसकी मीटिंग है? दिस इज अ डिसीजन मेकिंग बॉडी जिनकी एक मीटिंग होती है, राइट? सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स मीट once a year, that is साल में एक बार ये मीटिंग होती है, usually held in the month of December, right? So plenary chair, who holds the chairmanship? It is rotated on the annual basis, right? Annual basis पे rotation होती है and the participating nations, they are sometimes country A is there, sometimes B is there and then sometimes C, and this way there is a rotation every year of the chairmanship, right? So decisions कैसे होते हैं? On the basis of consensus. Significance क्या है इस move का? Like we have got the chairmanship for Wassenaar arrangement. Wassenaar arrangement क्या है? It is a regime to control the defense export. Defense export को control किया जाएगा. By that way we can check the terrorism also. That is, जो countries defense equipments को misuse कर सकती हैं उनको सप्लाई ना करके, राइट? सेकेंड थिंग, वी कैन ऑल्सो यूज दिस प्लेटफॉर्म टू कर्ब द टेरर फाइनेंसिंग ऑल्सो. इसके अगेंस्ट हम आवाज उठा सकते हैं यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म. थर्ड थिंग, अभी इंडियन होम मिनिस्टर इज ऑल्सो अ चेयरमैन ऑफ नो मनी फॉर टेररिज्म. सो दिस इज अ विन विन सिचुएशन. ये क्या है? नो मनी फॉर टेररिज्म, मिनिस्ट्रियल लेवल इनिशिएटिव है एंड इसकी चेयरमैनशिप भी इंडिया के पास है. दिस वे वी कैन परस्यू आवर एजेंडास अ लिटिल फास्ट वे, राइट? और क्या सिग्निफिकेंसेस हो सकते हैं इंडिया के लिए? आर्म्स डाइवर्जन को प्रिवेंट करने के लिए ये हेल्प कर सकता है फॉर द टेररिस्ट एक्टिविटीज़, या उन कंट्रीज़ को आर्म्स ना अवेलेबल हों जो टेररिज्म को सपोर्ट करती हैं. सेकेंड, स्ट्रॉन्ग एंटी प्रोलिफरेशन फ्रेमवर्क को फर्दर करने में दिस प्लेटफॉर्म कैन हेल्प अस, राइट?
इंडिया के वेस्टर्न नेबर्स लाइक वी हैव अफगानिस्तान, वी हैव यमन, वी हैव सीरिया, राइट, इनमें क्या है कि इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है. इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कैन लीड टू द रैपिड रेडिकलाइजेशन ऑफ द यूथ देयर एंड टेरर एक्टिविटीज बढ़ सकती हैं. दिस वे इट पोजेज अ चैलेंज फॉर इंडिया एंड इंडिया कैन टेक अ स्टेप फर्दर टू स्टॉप द टेररिज्म इन दीज कंट्रीज, राइट. सो मेकिंग आवर नेबरहुड सेफ, राइट. और क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं इसके इंडिया को? सी, इंडिया कैन पुश फॉर द अडॉप्शन ऑफ न्यू एक्सपोर्ट कंट्रोल्स. कौन से फील्ड में नई फील्ड्स इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, लाइक फ्लाइट टेक्नोलॉजी, इंटरसेप्शन टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल इन्वेस्टिगेशन टेक्नोलॉजीज. लाइकवाइज इससे क्या होगा कि अगर लाइसेंसिंग एंड इन्फोर्समेंट क्राइटेरिया अगर स्ट्रिक्टर होगा तो टेररिज्म और proliferation can be checked, right. In this way specifically we can make our neighborhood safe, like South Asia में हम इसकी implementation stricter करवा सकते हैं. Second thing, democratization of space and defense technology. इससे क्या होगा? See, India can play a significant role in democratizing the access to the technologies and processes. That is, अगर access democratic way में होगी, so इससे क्या हो सकता है हमें, like we are manufacturing defense and space equipments and we are into the low cost production of multiple equipments which are under the Wassenaar Arrangement control list. Like Wassenaar Arrangement में जो लिस्ट है उसमें से काफ़ी चीज़ें हम मैन्युफैक्चर करते हैं. अगर सबको इक्विटेबल एक्सेस मिलेगी सो आवर एक्सपोर्ट्स विल बी बूस्टेड, राइट. और कौन से एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम है, लाइक वी हैव द न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप 1975 में बना था. एज आई जस्ट टोल्ड, इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ NSG. देन वी हैव द ऑस्ट्रेलिया ग्रुप 1985 में बना था. इसका फोकस क्या है, केमिकल एंड बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजीज को कंट्रोल करना सो दैट उससे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन ना प्रोड्यूस हो सके, राइट. 43 member countries हैं and India is also a member of this group, right, and European Union is also a member. Then the other one we have is MTCR. कब बना था? 1987 में. इसका क्या है, मिसाइल टेक्नोलॉजी, that is rockets and as we have unmanned aerial vehicles UAVs, उनको या aerial vehicles को चेक करना, उनकी एक्सपोर्ट को चेक करना. This is what we have in the MTCR. यहाँ पे भी weapons of mass destruction पे focus किया जाता है. So India is a member of MTCR, but the point to notice here is China is not a member of MTCR. See, अगर हम missiles किसी को export करना चाहते हैं, then that particular country shall be a member of MTCR. We cannot export to a non-MTCR member, and then that particular country which we are importing from shall also be a member of MTCR. See, ये membership से हमें सिर्फ टेक्नोलॉजी या मटेरियल का एक्सेस ही नहीं मिलता. This would also help us enhance the credibility of nation as a responsible member of the world order. That's all for this topic. The next topic we are going to take up is India-Israel relationship. What is the context we will see. See, firstly you should be able to, the map of Israel is very important for you and you should be able to locate the neighboring countries. First one we have here is Jordan. This is Israel, right. This is Israel का map and बीच में this is a disputed area जहाँ पे Palestine है, right. Here also we have certain portion which is in the Palestinian occupation. Then we have the Syria, Egypt and here we have the Mediterranean Sea, right. First thing is news क्या है. See, इज़राइल में एक एग्जीबिशन थी by the name of Body of Faith. इज़राइल की एग्जीबिशन थी, इज़राइल के प्रेसिडेंट ने इनॉग्रेट किया. How does it becomes important for us? See, यहाँ पे कुछ इंडियन स्कल्पचर्स को इनॉग्रेट किया गया, right, by the Israeli president. This is how it becomes important for us, right. First thing you should know is कि इनमें से कुछ sculptures यहाँ से न्यू दिल्ली म्यूजियम से वहाँ ले जाए गए. Second thing is
कि वहाँ से कुछ मैन्युफैक्चर्ड थे which were manufactured by the Israeli people only. All were inaugurated by the President of Israel and they were related to the Indian deities and temple rituals. That is हमारे हिंदुइज्म के रिलेटेड ये स्कल्पचर्स थे जिनको वहाँ पे इनॉग्रेट किया गया बाय इजरायली प्रेसिडेंट. एंड वन मोर थिंग कि इंडिया और इजराइल के रिलेशनशिप को उन्होंने नेचुरल अलाइज का दर्जा दिया है. एंड ही सेड वी आर शेयरिंग मैनी democratic idols and ritualistic and religious and cultural commonalities as well, right? So 14 ऐसे sculptures थे जो वहाँ पे inaugurate किए गए and they were belonging to 4th to 13th centuries. इस period से वो sculptures belong करते थे. This is all about the news. Something more in this context. See, इंडिया की बहुत सी रिचुअल्स में, टेम्पल्स में कुछ चीज़ें यूज़ होने वाली थी लाइक द नीरद ऑयल, अहाल अरोमेटिक वुड और सिनेमन. ये हमारे यहाँ पे हिंदू रिचुअल्स में यूज़ होती हैं. एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट इज़ कि इनका बाइबल में भी मेंशन मिला है. एंड ये जेरूसलम दैट इज़ इज़राइल में भी रिलीजियस चीज़ों में या टेम्पल पीरियड में इनका यूज़ बहुत ज़्यादा होता था, राइट? एंड देन जो स्कल्पचर्स हैं वहाँ पे वो 3 मेजर पीरियड को बिलोंग करते थे. फर्स्ट वाज गुप्ता डायनेस्टी, देन वी हैड चोला एंड देन पाला डायनेस्टी. इन मेजरली इन 3 पीरियड्स के वो स्कल्पचर्स हैं जो वहाँ बॉडी ऑफ फेथ में रखे गए हैं. समथिंग अबाउट द इंडिया इजराइल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप. सी 1915 में हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप शुरू हुए व्हेन इंडिया ऑफिशियली गेव रिकॉग्निशन टू इजराइल एज अ नेशन, राइट? उसके बाद इजराइल ने अपना इमिग्रेशन ऑफिस एस्टेब्लिश किया इन बॉम्बे सून आफ्टर दैट रिकॉग्निशन, राइट? द फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस वर एस्टेब्लिश्ड ओनली इन ईयर 1992 एंड एम्बेसीज वर ओपन्ड इन द रिस्पेक्टिव कंट्रीज. समथिंग अबाउट द इकोनॉमिक एंड कमर्शियल रिलेशनशिप. सी, दोनों कंट्रीज़ का बायलेटरल मर्केंडाइज ट्रेड दैट इज़ गुड्स में जो ट्रेड होता है दोनों कंट्रीज़ का आपस में, वो कितना है? इन द ईयर 1992 जब दोनों कंट्रीज़ की एम्बेसीज एक दूसरे कंट्री में इस्टेब्लिश हुई थी, देन इट वाज इन मिलियंस दैट इज़ $200 मिलियन US. और अब कितना है? इट इज़ $6.53 बिलियन US. नाउ इट स्टैंड्स एट मल्टीपल टाइम मोर देन व्हाट इट यूज्ड टू बी इन year 1992 when we started our trade relationships, right? So balance of trade is in favor of India. What does it mean? It means we are exporting more and import हमारे कम है, which is a win-win situation for India, right? India is Israel's 3rd largest trade partner. That is एशिया में हम इसराइल के तीसरे लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर हैं and we stand at 7th position ग्लोबली, राइट? कौन से सेक्टर्स में इंटरेक्शन है हमारी? इन दी फार्मास्यूटिकल, एग्रीकल्चर, IT, टेलीकॉम, सिक्योरिटी. एंड हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में भी डील कर रहे हैं. इजरायली कंपनीज हैव बीन इंस्ट्रूमेंटल इन ट्रांसफरिंग दी टेक्नोलॉजी टू इंडिया. कौन से एरियाज में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर रहे हैं? लाइक रिन्यूएबल एनर्जी, देन वी हैव टेलीकॉम, वाटर टेक्नोलॉजीज, राइट? एंड उनके R&D सेंटर्स भी यहाँ पे इंडिया में इस्टेब्लिश हो रहे हैं. दैट इज दे आर ऑल्सो हेल्पिंग अस इन प्रोमोटिंग द रिसर्च एंड डेवलपमेंट. वन मोर थिंग, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट अभी तक दोनों कंट्रीज में साइन नहीं हुआ बट द नेगोशिएशंस आर गोइंग ऑन. डिफेंस सेक्टर में सी, वी आर अ बिग टाइम डिफेंस इम्पोर्टर फ्रॉम द इजराइल. India imports critical defense technologies from Israel and there are regular exchanges between the armed forces. That is हम बहुत से defense equipments वहाँ से purchase करते हैं. And the cooperation on the security issues including joint working group on the counter terrorism. ये working group भी दोनों countries के बीच में एक form हुआ है on which we are cooperating on the defense technologies, right? Israeli Falcon AWACS, this is what we have imported from there. And then Heron drones, then Barak anti-missile defense system,
ये भी हम वहाँ से इम्पोर्ट करते हैं. देन एग्रीकल्चर में, सी एग्रीकल्चर में द इजराइलीज आर वेरी एडवांस्ड एंड दे आर हेल्पिंग अस. 3 साल का एक जॉइंट वर्किंग प्रोग्राम साइन हुआ है between both the countries and it was signed in the year 2021, right? इसमें क्या क्या था कि हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डेवलप करेंगे, वैल्यू चेन एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करेंगे. एंड व्हाट एल्स वी कैन बेनिफिट फ्रॉम देयर, हॉर्टिकल्चर मैकेनाइजेशन को लेके इजरायली एक्सपर्टीज से वी कैन बेनिफिट, ऑर्किड्स, कैनोपी मैनेजमेंट, माइक्रो इरिगेशन लाइक ड्रिप इरिगेशन हम पहले यूज़ कर रहे हैं वहाँ से लेके टेक्नोलॉजी, एंड दिस हैज़ बीन अ वेरी सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी एंड इट हैज़ एक्चुअली हेल्प्ड अस रीप मल्टीपल फोल्ड बेनिफिट्स फ्रॉम द इरिगेशन फैसिलिटीज़ वी आर करंटली हैविंग, राइट. और क्या है, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट पे भी दोनों कंट्रीज मिलके फोकस कर रही हैं. देन वी आर ऑल्सो कोऑपरेटिंग ऑन द डेयरी फार्मिंग एंड मिल्क यील्ड को enhance करने की डायरेक्शन में भी both the countries are cooperating, right? Then something on the science and technology. See, दोनों countries के बीच में there is a joint committee on science and technology. कुछ agreement sign हुआ था in 1993. So उसके basis पे ये joint committee form हुई थी, right? And then we are also participating on I4F, right? What does it mean? It means India Israel Industrial Research and Development and Technological Innovation Fund has been set up to secure the cooperation between the Department of Science and Technology, हमारा इंडिया का, and then Israeli Innovation Authority, right? ये एक फंड इस्टेब्लिश हुआ है, I4F बोलते हैं इसको, इंडिया इजराइल इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन फंड, राइट. ये हमारे कंट्री में और इजराइल की कंट्री में ये फंड से कोऑपरेशन होती है टू प्रमोट दी एंड फैसिलिटेट एंड सपोर्ट दी जॉइंट इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट, दैट इज इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे इसका फोकस है, राइट. एंड व्हाट एल्स इट इज फोकसिंग ऑन, इट इज ऑल्सो फोकसिंग ऑन दी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस बिटवीन बोथ दी कंट्रीज. एंड कुछ फोकस सेक्टर्स हैं जिन पे दोनों कंट्रीज़ ने बैठ के कोलैबोरेट करने के लिए एक म्यूचुअल अग्रीमेंट साइन किया है, राइट. नाउ समथिंग अबाउट द एनर्जी कोऑपरेशन. सी, इजराइल में तामर एंड लेवायथन गैस फील्ड्स हैं. यहाँ पे इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज टू अप्लाई फॉर द एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग एंड आर कंपनीज लाइक ONGC विदेश, भारत पेट्रोलियम रिसोर्सेज, इंडियन ऑयल एंड ऑयल इंडिया were also awarded an exploration license. That is, हमारी इन कंपनीज को भी वहाँ पे ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए लाइसेंस दे दिया गया है by the Israeli companies, right? So what is the way forward here? See, P2P contact, that is people to people contact, हमने अभी इतना एक्सप्लोर नहीं किया and we are lacking in the P2P contact, right? So we need to increase the people to people participation. Second thing is ट्रेड एनहांस करने की ज़रूरत है. हाउ? सी, वी हैवंट एक्सप्लोर्ड आर पोटेंशियल लेवल, राइट. जितना हमारा पोटेंशियल लेवल है वी हैवंट रीच दैट लेवल. सो द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट शैल बी एग्जीक्यूटेड एज सून एज पॉसिबल. एंड जो ट्रेड में गुड्स हैं उनकी बास्केट को एक्सपैंड करना चाहिए, राइट. दीज आर ऑल द पॉइंट्स बाय विच वी कैन एनहांस द trade participation between both the countries. And striking balance, what is it about? See, Israel and Palestine का conflict चल रहा है from a long time, territorial dispute है, right. So we cannot, वहाँ पे it is contended back again by the human right agencies कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा human right issues चल रहे हैं in Palestine, right. And the Israel is exploiting that, right. So हमें एक बैलेंस ट्राई करने की ज़रूरत है between the geostrategic needs and the international morality. That is, we have to give a balanced approach and we have to look at both the countries in a balanced way, not missing out even on the humanistic aspects, right.
Then we have the China-Israel ties are growing up. That is China की engagement Israel से बढ़ रही है. With that we need to be proactive in dealing with the Israel so that we can leverage our relationships a better way. Our next topic of discussion shall be on the United Nations Security Council. So what is the news? इंडिया को मंथली प्रेसिडेंसी मिली है यूएनएससी की. व्हाट इज दिस मंथली प्रेसिडेंसी? सी, यूएनएससी में देयर आर 15 मेंबर्स. 5 परमानेंट होते हैं, 10 इलेक्टेड होते हैं. ये 2 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं. एंड दिस वे इंडिया इज वन ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स करंटली, राइट. 2021 एंड 22 में हमारा टेन्योर फॉल कर रहा है यहाँ. सो इसके बीच में क्या हुआ है कि हमें 2 बार मंथली प्रेसिडेंसी मिल गई है. दिस इज द सेकेंड टाइम वी हैव गॉट द मंथली प्रेसिडेंसी. द फर्स्ट वन वाज इन अगस्त 2021 एंड नाउ दिस इज द सेकेंड टाइम दैट वी हैव गॉट द मंथली प्रेसिडेंसी फॉर द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. यूएनएससी है क्या? सी, दिस इज वन ऑफ द 6 मेन यूएन ऑर्गन्स. कौन से यूनाइटेड नेशन ऑर्गन्स हैं? 6. फर्स्ट इज UNSC that we are going to explicitly discuss here. Then we have the United Nations General Assembly, Economic and Social Council, Trusteeship Council, and then we have the International Court of Justice and UN Secretariat. These are the 6 organs and this is one of the UN organ, right? UNSC is one of the UN organ. पहला सेशन कब हुआ था? In the year 1946. It was held in London, right? Westminster, लंडन. एंड हेडक्वार्टर कहाँ है यूएनएससी का? इट इज़ इन न्यूयॉर्क. प्रेसिडेंसी मिली है, सो दिस वे इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट फॉर अस. समथिंग अबाउट द मेंबरशिप ऑफ यूएनएससी. सी, देयर आर 15 मेंबर्स एज आई जस्ट टोल्ड. उनमें से 5 परमानेंट होते हैं. दीज आर कॉल्ड एज P5. कौन से हैं ये P5? दे आर द परमानेंट मेंबर्स. ये कौन से हैं? China, France, Russia, US and UK. These are the P5 members, right? They have certain veto power. I will explain it a little later. So, बाकी 10 नॉन परमानेंट होते हैं and they are elected. इलेक्शन बेसिस पे इनकी सिलेक्शन होती है and 2 साल का टर्म होता है इनका, right? And अभी कौन से हैं? These non permanent members, these are Albania, Brazil, Gabon, Ghana, Ireland, इंडिया, केनिया, मैक्सिको, नॉर्वे एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स. एक मैटर है विच इज़ वेरी मच ऑफ कंसर्न हियर कि यूएन के 193 मेंबर्स हैं. आउट ऑफ 193 यूएन मेंबर्स 50 ऑफ देम, दैट इज 50 को एक बार भी मौका नहीं मिला यहाँ पे नॉन परमानेंट मेंबर ग्रुप में आने का. 50 विच इज़ अ बिग नंबर, सो इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न. एंड देन आई स्पोक समथिंग अबाउट द वीटो पावर. ये किन के पास होती है? दीज P5 मेंबर्स. परमानेंट 5 मेंबर्स के पास एक वीटो पावर भी होती है. सपोजिंगली सम रेजोल्यूशन इज बीइंग मूव्ड इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. कोई रेजोल्यूशन पास होनी है, 14 मेंबर्स आउट ऑफ देम आर वोटिंग इन फेवर ऑफ दिस रेजोल्यूशन, राइट. पर एक मेंबर को इससे ऑब्जेक्शन है, राइट. Some of the P5 member, one of the P5 member is having an objection against this resolution. So what would happen is अगर वो negatively vote करते हैं तो ये resolution pass नहीं होगा, right? Even one member can hinder the entire process. This is what is about the veto power of the P5 members. See, there are 2 type of issues. अगर veto की बात हो रही है, I will explain you little in detail. एक सब्सटेंटिव इशू होते हैं, एक प्रोसीजरल. जो सब्सटेंटिव इशू होते हैं इन पे वीटो पावर यूज़ की जाती है, राइट. और जो प्रोसीजरल इशू होते हैं इन पे वीटो पावर यूज़ नहीं होती. बट द प्रॉब्लम हियर इज़ कि ये डिफाइन नहीं किया गया कि कौन से प्रोसीजरल इश्यूज़ हैं एंड कौन से सब्सटेंटिव इश्यूज़ हैं यहाँ पे, ठीक है. तो उससे क्या होता है कि कौन डिसाइड करेगा इसको? इसकी अथॉरिटी भी P5 के पास है टू डिक्लेयर अ मैटर अंडर ईच ऑफ द कैटेगरीज, कि उसको किसके अंडर डालना है. या तो सब्सटेंटिव के अंडर डालेंगे या उसको प्रोसीजरल के. ये भी कौन डिसाइड करता है? P5 ओनली. सो दिस वे दे कैन एक्सप्लॉइट देयर वीटो पावर, राइट. समथिंग अबाउट द UNSC इलेक्शंस. सी,
each year the General Assembly elects the 5 non-permanent, that is election कौन करता है, UN General Assembly, UNGA, that is the other one of the 6 bodies of the UN, right? So उनमें से एक UN General Assembly हर साल elections conduct करती है and they are electing 5 non-permanent members each year, right? मतलब 5 जो पुराने वो कंटिन्यू करेंगे, 5 नए आएंगे, राइट? जो पुराने हैं उनका टर्म अगले साल एक्सपायर हो जाएगा, उनकी जगह पे अगले साल फिर 5 और आएंगे. दिस वे इट वर्क्स इन रोटेशन, राइट? सो द 10 नॉन परमानेंट सीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द रीजनल बेसिस, दैट इज जो 10 मेंबर्स होंगे उनकी भी वेटेज है कि इस एरिया को इतनी वेटेज और इतनी सीट्स अलॉट की जाएंगी, राइट? लाइक अफ्रीकन एंड एशियन नेशन, दैट इज अफ्रीका एंड एशिया को 5 सीट्स दी गई हैं. देन ईस्ट यूरोपियन स्टेट्स को 1 सीट दी गई है, वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स को 2 सीट्स दी गई हैं, एंड देन लैटिन अमेरिकन एंड कैरिबियन स्टेट्स को 2 सीट्स दी गई हैं. यहाँ पे दिस इज द वे दे हैव प्रोवाइडेड द वेटेज टू द डिफरेंट स्टेट्स, राइट? देयर इज वन वेरी कंसर्निंग इशू कि जो P5 है वहाँ पे अफ्रीकन रिप्रेजेंटेशन नहीं है. I'll show. See, here we have China from Asia and then Europe है, ठीक है, and then America है, but nowhere there is a African countries in the P5. This is a very concerning issue, right? And what next? To be elected to the council, the candidate countries need at least 2/3 majority of ballots, that is 2/3 majority of votes इनको चाहिए होंगी of the member state that are present and voting in the UN General Assembly, that is UNG के GA के members की 2/3 majority से votes उनको चाहिए to be elected as a non-permanent member. Then UNSC elections were traditionally held in the General Assembly Hall. कहाँ elections conduct किए जाते हैं? In the General Assembly Hall with each of the 193 member state. That is सारे के सारे present होंगे and they shall be casting its vote in a secret ballot. Every point here is important. कैसे होती है voting? Via secret ballot. कहाँ होती है? UN General Assembly Hall में, and all the 193 members are present and voting, right? That's all about the voting thing. Then something about the power and functions. See, maintain international peace and security. सबसे पहला फंक्शन है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस, राइट? यूएन प्रिंसिपल्स को एडहर करना, राइट? एंड देन इन्वेस्टिगेशन ऑफ द डिस्प्यूट और सिचुएशन which might lead to a international friction. अगर किसी चीज़ से ये लग रहा है कि इंटरनेशनल लेवल पे कुछ फ्रिक्शन बिटवीन 2 कंट्रीज या 2 or more कंट्रीज क्रिएट हो सकती है, तो ऐसे डिस्प्यूट्स को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इन्वेस्टिगेट भी करता है एंड दे डू रिकमेंड द मेथड ऑफ एडजस्टिंग सच डिस्प्यूट्स ऑल्सो, दैट इज दे प्रोवाइड फॉर एडजुडिकेशन ऑल्सो, राइट? और द टर्म्स ऑफ सेटलमेंट भी ये डिफाइन करते हैं. वैसे एडजुडिकेशन बेसिकली किसका है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस विच इज़ वन ऑफ द ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन ओनली. मेन फीचर उनका है, बट अप टू सर्टेन लेवल द डिस्प्यूट्स आर settled here also, right? Then to formulate the plans for the establishment of the system to regulate the armaments, that is armaments को regulate करने के लिए भी कुछ ये plans formulate करते हैं, right? What next? See, अगर कोई इनको लगता है कि पीस थ्रेटन कर रहा है या कोई एक्ट ऑफ एग्रेशन में इन्वॉल्व हो रहा है, तो इस केस में what action should be taken? This is decided by the United Nations Security Council. ये recommendations देते हैं on this thing, right? To call on the members to apply economic sanctions, right? अगर कुछ लगता है कि हाँ somebody is going against the protocols or somebody can disturb the tranquility of the region, then they can apply the economic sanctions as well. They can also take the military action against the one
country which is causing the aggression in the entire region, right? Issues क्या क्या हैं यहाँ पे? See, first issues are related to the membership of United Nations Security Council. When was it formed? In the year 1945. 1945 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बना था. तब से, जब से ये बना है तब से अब तक सिर्फ एक बार इसकी एक्सपेंशन हुई है, हैज़ बीन इनलार्ज्ड ओनली वंस, एंड वो भी नॉन परमानेंट मेंबर्स का नंबर इंक्रीज किया गया था, नॉट दी परमानेंट 5. दैट इज परमानेंट 5 वही के वही है, ना तो ये 5 से 6 कंट्रीज हुई हैं, ना ही कंट्री कोई चेंज हुई है बीच में, राइट? सो विच इज़ अ प्रॉब्लमेटिक थिंग, क्योंकि यूनाइटेड नेशन कब फॉर्म हुआ था? इन द ईयर 1945 ओनली. जब बना था तब 51 मेंबर्स थे, अब कितने मेंबर्स हैं? 193 मेंबर्स. दैट इज ऑलमोस्ट 4 गुना इंक्रीज हो चुका है, पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप ऑलमोस्ट सेम है, राइट? सेकेंड थिंग इज वीटो पावर. वीटो पावर का क्या इशू है? सी, इट हैज़ बीन एक्सक्लूसिव डोमेन ऑफ द परमानेंट 5 मेंबर्स ओनली. दैट इज नॉन परमानेंट मेंबर्स के पास कोई वीटो पावर नहीं है, राइट? दे डू नॉट हैव अ वीटो पावर विच हैज़ बीन क्वेश्चनड बाय अ लॉट ऑफ मेंबर्स. And what else? Member countries have put question marks on the existence of the veto power, which is contrary to the democratic principles. This is also contended कि ये democracy के nature के against है. There shall be equal participation by all. Next issue is about the translation. The Constitution of India, which is translated just into 2 languages, that is English में होता है या हिंदी में. Still it is getting so many litigations. यहाँ पे क्या है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 6 लैंग्वेजेस में डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट करना पड़ता है, सो विच लीड्स टू डिस्कशंस ऑन द एक्यूरेसी ऑफ दीज लैंग्वेजेस, एंड दिस प्रोसेस हैज़ मैनी टाइम्स डिलेड द अडॉप्शन ऑफ द टेक्स्ट इन द यूनाइटेड नेशन. इससे क्या होता है कि प्रोसेसेस डिले हो जाते हैं. क्रिटिसिज्म क्या है यूएनएससी का? सी, first is it is losing the relevance. See, if some important issue is being discussed on the platform and P5 members में से कोई भी veto use करके उसको block कर रहा है and the discussion is stopping there only, so what is the use of taking the issue up to the United Nations Security Council? Second thing is credibility का issue आ रहा है, that how credible their decisions are if they can be using the veto, right? Third is narrow leadership. As I just told you कि अफ्रीकन कंट्रीज़ को कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, देन कोई एक्सपेंशन नहीं हो रही, एंड देन P5 आर वेरी मच द सेम एंड दे कैन यूज़ द वीटो. दीज आर द प्रॉब्लम्स विच आर लीडिंग टू दीज काइंड ऑफ डाउट्स, राइट? एंड देन डिफरेंसेस अमंग द P5, इनकी वजह से क्या हो रहा है कि they are losing the coherence, that is coherent policy making नहीं हो पा रही, that is there is a lack of consensus. Then Syrian war crisis में and COVID-19 pandemic के टाइम पे इनका जो रोल रहा है उसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है. and then no veto right with the non permanent members, जिसकी वजह से they become really toothless and they cannot assert their will. वो क्या कर सकते हैं? बस किसी परमानेंट मेंबर को परसुएड या डिसवेड करने की कोशिश कर सकते हैं. दिस वे दे आर नॉट एबल टू यूज देयर पावर्स, राइट? एंड इंडिया हैज़ बैक अगेन सेड दैट देयर इज़ अ नीड ऑफ रिफॉर्म्स इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. So there is also a need of reforms in the United Nations Security Council, as I have just mentioned in the previous page, right? So कौन से रिफॉर्म्स हो सकते हैं? इक्विटेबल वर्ल्ड ऑर्डर को मेंटेन किया जा सकता है बाय यूजिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी, दैट इज डेमोक्रेटिक प्रोसेस होना चाहिए. सेकेंड थिंग इज कि अफ्रीकन कंट्रीज को रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए, दैट इज इट इज टॉकिंग अबाउट द इंक्लूसिविटी इन द ऑर्गेनाइजेशन. देन इट शैल ऑल्सो डाइवर्सिफाई इट्स रोल, लाइक प्रोटेक्शनिज्म राइज कर रहा है, टेररिज्म बढ़ रहा है, राइट? एंड देन क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं. सो इन चीज़ों में भी यूएनएससी को अपना एक रोल एक्सपैंड करना चाहिए, एंड देयर शैल बी मोर resilient and responsive approach by these multilateral organizations.
what are the challenges that India can be facing at UNSC? The first one can be Chinese challenge. How China is becoming a challenge for India? Because China is trying to assert itself at various forums like Indian Ocean region में भी ये अपना forum बना रहा है, as I discussed in the previous lecture, like last week's current affairs session, right? And then Indo-Pacific में भी it is trying to assert its presence. This way, this can be a little challenging for India to handle, as the China heads at least 6 UN organization and has challenged the global rules. That is, कम से कम 6 UN organizations का ये China head भी है. So if it is trying to assert its global presence, then it is worrisome for India, right? And Indo-Pacific में, as I told, the China is trying to assert its dominance. Then India-China border, यहाँ पे भी China is becoming aggressive, right? Then कश्मीर का issue बहुत बार China ने has tried to raise this issue at the United Nations Security Council also, right? Then the next problem can be balancing between US and Russia. जैसे you all know that there is a growing bitterness in US and Russia relationship, right? So उनको balance करना and whom to be given priority, this can be a little worrisome issue for India, right? India needs to deliberate strongly on this thing also. Then unstable West Asia, that is, हमारे जो वेस्ट में प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनकी वजह से भी देयर कैन बी सम चैलेंजेस दैट इंडिया कैन बी फेसिंग एट द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. एंड देन वी हैव द इजराइल एंड पैलेस्टाइन इशू. इनमें से किसको कब वेटेज देनी है, कब नहीं देनी, ये हेडिंग द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, दिस कैन बी समवट little tricky to handle for India. Then we have the West Asian approach also, that is जो हमारे neighborhood में countries है, अफगानिस्तान, then we have Syria, then we have Yemen and the Israel and Palestine also. These are the countries which we need to tackle in a balanced way. What can be the way forward? See, Asian conflicts को resolve करने में हमें एक प्रायोरिटी देनी चाहिए. What are these countries? अफगानिस्तान, म्यांमार, येमेन एंड सीरिया. ऐसी कंट्रीज़ में पॉलिटिकल प्लस इकोनॉमिक टर्मोइल चल रहे हैं. सो एज आई जस्ट एक्सप्लेन्ड यू, अगर ऐसी पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी बनी रहती है, सो व्हाट हैपन्स इज द कम्युनिटीज़ कैन बी रेडिकलाइज्ड वेरी क्विकली. सो इससे क्या होगा, टेररिज्म इंक्रीज होगा. सो checking this, being a chair of United Nations Security Council, becomes a mandate for India, right? Second is promotion of the international peace and security shall be paid attention, right? अभी तक we have given insufficient and poorly coordinated responses to the issues of the promotion of international peace. So यहाँ पे थोड़ा coordinated response की ज़रूरत है. Then focus on the demands of those who elected us. Who elected us? See, हमें majority of the votes they were from the Asia Pacific countries also, जिनको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल सकती. सो दिस इज द स्टेज वेयर वी कैन इम्प्रूव आवर रिलेशनशिप विद दीज कंट्रीज बाय रेजिंग देयर voices, by becoming a voice for them, right, and raising their issues at their platform, right. Then upholding the rule based multilateral system, that is rule based order को promote करने में India can take a step forward. That's all for this topic for today. The next topic of discussion shall be on G20. Now something about the G20. What is this? It is a informal grouping, that is ये formalized grouping नहीं है, this is an informal grouping. And who all are the members of this group? There are 19 countries, European Union, and it also has the representation from the IMF and World Bank, right? ये दो bodies की भी representation है in G20. Like I repeat, who all? 19 countries, European Union, and then there is a representation from IMF and World Bank also. What is the other name for this organization? It is Summit on the Financial Markets and the World Economy. I'll again repeat it. Summit on the Financial Market and the World Economy. This is the other name for the G20, right?
19 countries which I just spoke about. Let's locate them over the map. These are Canada, US, Mexico, Brazil, Argentina, then we have the UK, France, Germany, Italy, Turkey, Saudi Arabia, South Africa. Here we have Russia, China, India, Japan, South Korea, Indonesia and Australia. See, this is the way you need to divide the countries into the grouping. It becomes very important to divide the countries and then memorize them. These all countries are very much important for you to locate on the map and to memorize the names of. Some more points about G20. See, how to know how important a organization or forum can be. ये इसका estimate कहाँ से मिलता है? So we can gauge the estimate by looking at its share of population it is holding. Global GDP में, investment में, trade में कितना share है. This way we will also look at the share of G20 in the various things. See, 2/3 of the population, that is approximately 66% of the world population is a part of this grouping, right? And 85% of the global GDP, that is 85% global GDP भी यहीं से आती है, and then 80% of global investment and 75% of the global trade is via this organization only, which is a huge share, right? And one important point about it, which UPSC has a habit of asking question about it, that there is no permanent secretariat or headquarter of this organization. Very important. UPSC has a habit of asking such questions. जब ये forum बनी थी, G20 जब बनी थी, it was formed as a economic forum, right? पर अभी इसका रोल डाइवर्सिफाई हो गया है. इट इज़ ऑल्सो लुकिंग इनटू द ट्रेड, इट इज़ ऑल्सो लुकिंग इनटू द हेल्थ, इट इज़ ऑल्सो लुकिंग इनटू द क्लाइमेट चेंज एंड अदर डोमिनेंट geopolitical issues also it is deliberating on, right? Some more points about the 17th G20 summit. See, कहाँ हुआ था ये? बाली, इंडोनेशिया में. So this is very important for us to know. क्यों? क्योंकि first thing is it is the latest summit that happened. जो latest summit होते किसी organization के, which are very important. All the latest meetings of any forum become very important for us to know. सेकेंड थिंग इज कि यहाँ पे इंडिया को प्रेसिडेंसी मिली है. किससे मिली है? इंडोनेशिया. इंडोनेशिया हैज़ हैंडेड ओवर द प्रेसिडेंसी टू इंडिया फॉर G20 फोरम at the 17th G20 forum summit, right? So there is a term called as G20 Trica. What is it? See, it is a group of 3 countries. Which 3 countries? It includes predecessor, that is जिसके पास पहले मेंबरशिप थी. इन दिस केस इट वॉज इंडोनेशिया. देन जिसके पास अब है, दैट इज प्रेसिडेंट. कौन है? इंडिया. देन जिसके पास फ्यूचर में होगी, इंडिया शैल बी पासिंग इट ऑन टू ब्राज़ील. इट वुड बी कॉल्ड एज सक्सेसर नेशन, राइट? सो दिस इज अ ग्रुप ऑफ प्रीडिसेसर, प्रेसिडेंट एंड सक्सेसर नेशन. क्यों? व्हाट इज द पर्पस ऑफ फॉर्मिंग दिस ग्रुपिंग? ताकि एजेंडा की कॉन्टीन्यूटी मेंटेन की जा सके एंड देयर शैल बी अ सीमलेस पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, राइट? हुआ द करंट ट्रायोका, आई टोल्ड यू, इंडोनेशिया, इंडिया एंड ब्राज़ील. इससे पहले कौन था? इंडोनेशिया से पहले इटली था, देन इंडोनेशिया को मिली, फिर इंडिया को मिली. अभी किसको मिलेगी? यहाँ से इंडोनेशिया से इंडिया को मिली, इंडिया से ब्राज़ील को मिलेगी, राइट? Then 18th G20 summit shall be held in India in the year 2023. What is the theme? Theme here is recover together, recover stronger. That is post COVID scenario की recovery की बात की जा रही है यहाँ पे. And what else was there? There was a joint declaration which was signed on the 17th G20 summit, right? And बहुत से इश्यूज कवर किए गए इस जॉइंट डिक्लेरेशन में. वी विल बी लुकिंग एट देम वन बाय वन. क्या क्या बात की गई यहाँ पे? द फर्स्ट थिंग इज कंडेमिंग द रशियन अग्रेशन. रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट चल रहा है. इस वॉर के चलते देयर आर मेनी कंट्रीज विच आर कंडेमिंग द रशियाज अग्रेशन अगेंस्ट यूक्रेन. दिस इज इन सिंक विद द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रेजोल्यूशन नंबर ES 11/1. यहाँ पे क्या हुआ था? ये UN जनरल असेंबली का रेजोल्यूशन पास हुआ था लेटली. यहाँ पे 140+ कंट्रीज ने रशिया के अग्रेशन को कंडेम किया था. सो व्हाट वाज इंडिया टेक ऑन दिस? इंडिया एब्सटेन्ड फ्रॉम द वोटिंग.
बट ये इशू दोबारा फिर अभी G20 फोरम में उठाया गया एट द 17th समिट, राइट. दिस वाज द फर्स्ट टेक अवे फ्रॉम द 17th G20 समिट, राइट. सेकेंड इज एक और रेजोल्यूशन पास किया गया इंटरनेशनल लॉ एंड मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस को सेफगार्ड करने के लिए कुछ रेजोल्यूशन पास किया गया इन द डायरेक्शन ऑफ प्रमोटिंग द पीस एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन, राइट. So there was a declaration regarding this also, and it focused on adherence to the United Nations Charter, right, principles which are enshrined in the United Nations Charter. और क्या बात की गई यहाँ पे, to protect the macroeconomic and financial stability, that is उसको प्रोटेक्ट करने की बात की गई, एंड देन फाइनेंस एंड कैपिटल फ्लोज को मेंटेन करने की भी बात की गई एट दिस फोरम. देन इट ऑल्सो स्पोक अबाउट द एनर्जी ट्रांजिशन कि कैसा होना चाहिए एनर्जी ट्रांजिशन, क्लीन, सस्टेनेबल एंड अफोर्डेबल. व्हाट डज इट मीन? क्लीन एंड अफोर्डेबल, यू नो कि क्लीन होना चाहिए, साफ, एंड अफोर्डेबल होना चाहिए, दैट इट शुड बी लेस इन कॉस्ट, राइट. एंड थर्ड वन इज सस्टेनेबल. इट हैज़ टू कॉनोटेशंस अटैच्ड टू इट. फर्स्ट इज फ्यूचर जनरेशन के लिए अवेलेबल होना चाहिए. सेकेंड थिंग इज इट शैल नॉट बी पॉल्यूटिंग द एनवायरमेंट, राइट. दिस इज व्हाट वी मीन बाय सस्टेनेबल. देन एनर्जी पॉवर्टी को इरेडिकेट करने की बात की गई. व्हाट इज दिस एनर्जी पॉवर्टी? कि जो एनर्जी के सोर्सेज हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं, मॉडर्न सोर्सेज हैं, उसकी एक्सेस सबके पास होनी चाहिए, राइट. दिस इज व्हाट इट टॉक ऑफ. देन पेरिस अग्रीमेंट में एक अग्रीमेंट हुआ था कि क्लाइमेट चेंज बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी शेल नॉट एक्सीड 1.5 डिग्री सेल्सियस, राइट. कि टेम्परेचर राइज 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी. इसको लेके भी वहाँ पे एक जॉइंट डिक्लेरेशन साइन की गई दैट वी शैल बी वर्किंग इन दिस डायरेक्शन ऑल्सो. देन इट ऑल्सो talked about the global net zero emission. What is the India's target for the global net zero? It is year 2070, right. This is our target, right. और क्या क्या joint declaration sign हुई? To prevent the hunger and malnutrition, that is hunger and malnutrition से fight करने के लिए भी there was a joint declaration. And how would it be done? Agriculture को strengthen करके and supply chain को strengthen करके. Then there was this black sea grain initiative. क्या था ये? यहाँ पे इसकी बहुत प्रशंसा की गई एट द 17th G20 समिट. व्हाट इज दिस इनिशिएटिव? सी, यूक्रेन इज ऑल्सो नोन एज वर्ल्ड्स ब्रेड बास्केट, दैट इज इनका ग्रेन प्रोडक्शन में एक बहुत मेजर रोल है, राइट. सो व्हाट हैपेंड इज व्हेन रशिया अटैक यूक्रेन, सो द सप्लाई चेन दे वर डिसरप्टेड एंड द फूड इन्फ्लेशन वाज ऑन अ हाइक. सो this black sea grain initiative was a initiative in this direction to check the escalating food prices, right. और क्या बात की गई? बायोडाइवर्सिटी लॉस को या तो रिवर्स या हॉल्ट करने की बात की गई बाय द ईयर 2030. डू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस हॉल्ट? हॉल्ट मीन्स इतना है लेवल, यहीं पे रोक दिया जाएगा, ज़्यादा नुकसान नहीं होने दिया जाएगा. देन रिवर्स करना इज इवन अ स्टेप बेटर, दैट जितना बायोडाइवर्सिटी है उससे भी ज़्यादा बढ़ाने की बात की गई कि हम उसके लॉस को तो कम करेंगे, रोकेंगे, प्लस और भी बायोडाइवर्सिटी इंट्रोड्यूस करेंगे, राइट. एंड द ईयर टारगेटेड हियर इज 2030. व्हाट एल्स इट स्पोक अबाउट? इट ऑल्सो अर्ज्ड फॉर द अडॉप्शन ऑफ ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क. कहाँ पे अडॉप्ट करने की बात की गई? एट COP15. सी, आई विल एक्सप्लेन यू अ लिटिल. क्या हुआ था 1992 में? इट वॉज रियो अर्थ समिट. यहाँ पे क्या हुआ था? एक फ्रेमवर्क साइन हुआ था विच वॉज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, राइट. ये साइन हुआ था इन द ईयर 1992 एंड इट केम इनटू फोर्स इन 1993. तब से इसकी एनुअल मीटिंग्स होती जा रही हैं. सो दिस इज द 15th मीटिंग ऑफ द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. इसको COP15 बोला जाता है. So do pay the attention. What happened here is कि जो नवंबर में G20 की मीटिंग हो रही है उसमें दिसंबर में जो COP15 होने वाली है उसके लिए एजेंडा सेट किया जा रहा था कि ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क की बात होनी चाहिए एट COP15, राइट, विच इज टू बी हेल्ड इन Montreal, राइट. सो व्हाट इज दिस?
ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क कि 2022 के बाद पोस्ट 2022 क्या ग्लोबल एफर्ट्स होने चाहिए टू प्रिवेंट द ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड इवन टू रिस्टोर द ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी। और क्या क्या बात की गई एट द जॉइंट डिक्लेरेशन? हेल्थ पे फोकस दिया गया, दैट इज प्रिवेंशन की बात की गई, प्रिपेयरनेस की बात की गई, जॉइंट रिसर्च की बात की गई, वैक्सीन की प्रोडक्शन को लेके भी देयर वर जॉइंट डिक्लेरेशन, एंड देन अबाउट द शेयरिंग ऑफ द पैथोजन डेटा ऑल्सो, राइट? What are the challenges before G20 presidency? India is holding the presidency, so what are the challenges it can be facing? See, first is impact of Russian invasion. That is, रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया, दैट इज देयर इज अ रशिया यूक्रेन वॉर गोइंग ऑन। उससे क्या हुआ? सप्लाई चेन्स डिसरप्ट हो गई, राइट? उससे क्या हुआ? महंगाई बढ़ गई, हाई इन्फ्लेशन, और क्या हुआ? जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी पैदा हो गई है। दैट इज, अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, सो उससे क्या फर्क पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट्स कम होंगी। आ इन्वेस्टर विल बी थिंकिंग 10 times बिफोर इन्वेस्टिंग इन any country, right? So this way the purchasing power shall be eroded. How? See, अगर inflation high है तो इसको चेक करने के लिए central banks will be increasing the interest rate. इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा, सो उससे क्या होगा? लोन्स एक्सपेंसिव हो जाएंगे एंड लोग कम लोन लेंगे। लोन्स डिक्लाइन होंगे तो इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन होगी। अगर इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन हो रही है तो उससे क्या होगा? जॉब क्रिएशन फॉल कर जाएगी। अगर जॉब्स नहीं होंगी क्रिएट इकोनॉमी में, लोगों के पास जॉब्स नहीं होंगी एंड इन्फ्लेशन हाई होगी, तो इससे क्या होगा? परचेजिंग पावर लोगों की इरोड कर रही है, राइट? सो देन देयर इज ऑल्सो अ चैलेंज ऑफ स्लो डाउन विच स्टार्टेड इवन बिफोर द कोविड-19। कोविड-19 के सिनेरियो से पहले का एक स्लो डाउन चल रहा है अक्रॉस द ग्लोब, एंड देन रियल एस्टेट क्राइसिस विच इज more or less coupled with the slowdown only, right? Then there is a challenge of Brexit, that is, जो UK है एंड यूरो एरिया है उनमें ट्रेड डिक्लाइन कर गया है। अगर ट्रेड डिक्लाइन करेगा तो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स पे फर्क पड़ेगा, राइट? एंड देन देयर इज दिस एनर्जी चैलेंज। व्हाट इज दिस एनर्जी चैलेंज? सी, एज यू माइट हैव सीन इन द न्यूज़ येस्टरडे ऑल्सो और डे बिफोर, लाइक यूरोपियन यूनियन ने एक रेजोल्यूशन पास किया है कि जब तक एक बैरल का प्राइस सर्टेन लेवल से नीचे नहीं आता तब तक कोई रशिया से ऑयल नहीं परचेज करेगा। दिस इज अ वे टू लाइक द इम्पैक्ट द इकोनॉमी ऑफ रशिया, राइट? सो इससे क्या होगा कि रशियन इकोनॉमी पे बहुत गंदा असर जाएगा। सो बट what happens is the countries like India, they are still purchasing the oil from Russia. So Russia is teaching the world that while the sanction against it could impact the economy in the future, in the short term these sanctions are failing as they are still exporting the oil to certain other countries, right? Then there is a threat for stagflation, that is stagnant economy and inflation. दोनों चीज़ें साथ में ग्लोब विटनेस कर रहा है, right? What are the opportunities presented by the G20 for India? See, India can use this presidentship forum to present its diversity to the world. That हमारे पास कितनी linguistic, cultural and multifaceted diversity है and how we are utilizing it as an asset, right? Then management during pandemic. India management during pandemic has been exemplary for the rest of world. Among large democracy, India has far been the best performer in handling the COVID-19 pandemic. For the world, Indian public goods delivery mechanism, right, at a billion plus scale has set a new template. That is, this was an exemplary work done by India and we have got a platform to tell it to or convey it to the world also, right? Then independent foreign policy. हमारी फॉरेन पॉलिसी में हमारे डिसीजंस आर गाइडेड बाय द नेशनल इंटरेस्ट, राइट? दे आर नॉट गाइडेड बाय सम अदर फैक्टर, राइट? सो क्या हो रहा है? इंडिया इज इमर्जिंग एज अ थर्ड पोल। पहले बात की जाती थी कि कौन से पारे में इंडिया जाएगा,
amongst the dominating conflicting countries. But now India has its own dominance and it is being asserted as a third pole, right? हमारा अपना एक स्टैंड है and the globe is looking at us कि इंडिया का इस चीज़ पे क्या टेक है, right? Then employment and environment के regarding the G20 can act as a forum to exchange the experience on the societal benefit and growth as a complementary goal would lead to fresh thinking on the employment and environment, right? And then हमारे initiatives हैं like life movement, one sun, one world and one grid. These are the initiatives that we can share with the other major global powers, right? और क्या benefits हैं प्रेसिडेंसी के? सी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज होंगी इन दी एरियाज लाइक टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, IT, एविएशन, इनको सबको बूस्ट मिलेगा विद अस गेटिंग दी प्रेसिडेंटशिप. और किन सेक्टर्स पे फोकस कर सकते हैं? एनर्जी, एग्रीकल्चर, ट्रेड, डिजिटल इकोनॉमी, हेल्थ, इन्वायरमेंट, tourism, anti-corruption and women empowerment. These can be focused on during our presidentship, right? That's all for the discussion for today. Thank you so much.